Hello, dear children. How are you? I hope you all are fine. Welcome to Template 6 of the Bridge Course, Standard 7, Subject English. What is the learning outcome of Template 6? The students read silently with comprehension, reads to seek information from notice board, charts, tables, and other graphic presentation, and reads in order to obtain information. There are some instructions given for teachers, parents, and facilitators as usual. Now we are going to focus on learning activity. There are so many beautiful pictures in this learning activity, and this activity is based on your 6th standard textbook, The Wild Boar and the Fox. छात्राओं, आपने पिछले साल द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स यह कहानी पढ़ी है। मैंने आपको एक वीडियो में समझाई थी और एक बार मैं वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ और ये होने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप आपके टेक्स्ट बुक में 1.3 द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स घर पे पढ़ना है और ये वीडियो भी देखना है। In a few seconds I will show you the video. Page number 7, The Wild Boar and the Fox. The Wild Boar and the Fox. इसी का अर्थ है वाइल्ड बोर यानी जंगल में जो सुअर होता है ना, वाइल्ड जंगली, तो उसे हम जंगली सुअर कहेंगे। द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी। ठीक है, ये दोनों की कहानी है। देखो 1.3 ये स्टोरी है, मैं आपको समझाऊंगी इसको। तो चलो आइए हम सीखेंगे ये स्टोरी। One day a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. एक दिन एक जंगली सुअर अपने जो दांत है वो घिस रहा था against the bark of a tree. पेड़ की जो खाल होती है ना, उसको वो घिस रहा था। bark यानी खाल, पेड़ का जो तना होता है उसकी खाल। He was doing it very carefully, और वो बहुत सावधानी से, ध्यान से उसे कर रहा था। He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest, और उसी फॉरेस्ट में एक फॉक्स रहता था, एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी दिख रही है ना आपको? He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. और वो लोमड़ी हमेशा एक अवसर देखती थी कि मैं दूसरे प्राणियों का उस जंगल में का मजाक कैसे उड़ाऊं। To make fun यानी दूसरों का मजाक उड़ाना। To tease other animals. When he saw the wild boar, he decided to tease him. और जब उसने इस जंगली सुअर को देखा, उसने निश्चय किया कि मैं उसे टीज करूंगा। टीज यानी मजाक उड़ाऊंगा उसका। He began to walk around the trees, looking like left and right and up and down. और वो क्या कर रहा था? आजू बाजू घूम रहा था पेड़ के, और दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहा था। दिख रहा ना
not ready, I will have to suffer. और अगर मैं तैयार नहीं रहूँगा उस खतरे के समय तो मुझे सफ़र होना पड़ेगा, मुझे हानि मतलब सहन करनी पड़ेगी, दुख सहन करना पड़ेगा. My weapons have to be ready. मेरे हथियार रेडी होने चाहिए. देखो कितना अच्छा बोध मिल रहा है. This story tells us that it is best to be prepared. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमने prepared होना चाहिए, तैयार होना चाहिए. पूर्णतः don't leave things to be done at the last minute. और आखिरी तक काम करते नहीं रहना चाहिए. अपना काम पहले ही हमने पूरा करना चाहिए. लास्ट मिनट तक तुम काम करते ही रहते हो, ऐसा नहीं. हमने आगे का खतरा ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए. We should be always prepared. इस कहानी से यह सीख मिलती है. परीक्षा के समय भी आखिरी तक पढ़ाई नहीं करना, पहले ही अपनी पढ़ाई खत्म करना. धन्यवाद. So students, this was the story of template 6 learning activity. Now I will ask you some questions. Name 2 animals in this story. Which were the 2 animals in the story? The wild boar and the fox. These were the 2 animals. What was the wild boar doing one day? What was he doing? The wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. How did the fox tease the wild boar? How did he tease the wild boar? Can you answer? The fox teased the wild boar by looking here and there and telling him that he was going round and round the tree, and he said to the wild boar that I cannot see any enemy coming. Why was the wild boar sharpening its tusk? The wild boar was sharpening his tusk. वाइल्ड बोर अपने दांत क्यों घिस रहा था? मैंने आपको कहा था क्यों घिस रहा था? Because he was ready to face the enemy. What does the story tell us? ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी हमें ये बताती है कि don't leave the work till the last minute. We should always be prepared. तो देखो मैंने उस वीडियो में ये सभी चीज़ों का आंसर जो है लगभग मैंने दिया है. अभी देखो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड द सेंटेंसेस. मैच द सेंटेंसेस विद द पिक्चर्स. अभी आपने क्या करना है? ए बी सी डी ई और एफ ऐसे पिक्चर्स दिए हैं. यू हैव टू मैच these sentences with the pictures. Okay. A wild boar is sharpening his tusk against the bark of a tree. अभी देखो आपको कौन सा चित्र दिख रहा है जिसमें वाइल्ड बोर अपने दांत घस रहा है? डी में. The fox like to tease and make fun of other animals. So इसमें कौन सा चित्र दिख रहा है? You can use E, you can use F. The fox was scared. इसके लिए आप E यूज़ करो. The wild boar and the fox started talking. C इसके लिए. A wolf was hiding behind a tree. इसके लिए B आप यूज़ कर सकते हो. And the wild boar was ready with its weapons. So here you can use A. Okay. So इस तरह से आपने जो भी चित्र है उनके साथ ये सेंटेंसेस मैच करना है. उसके बाद सॉल्व एक्टिविटी में द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स एंड द 2 एनिमल्स, इसके हमने स्टोरी बताई. कंप्लीट क्वेश्चन नंबर हमने देख लिया है. एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में दी है कि लुक एट एनी बोर्ड विथ इंग्लिश राइटिंग अराउंड यू एंड a board at the school, Samaj Mandir, hospital, shop.
bus stand, railway station, and try to read it. Discuss with your parents, teachers, friends about the information that you receive from the boards. तो आपने क्या करना है इसमें कि कोई भी बोर्ड अगर आपको दिखता होगा, चाहे वो स्कूल में हो या समाज मंदिर में हो, दवाखाने में हो, शॉप पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, सो यू ट्राई टू रीड इट, उसे पढ़ने की कोशिश करो. और यू कैन डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ इसकी चर्चा करो. बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेस टू रीडिंग एंड एक्टिविटीज़, मतलब इसका इवैल्यूएशन जो है, इसका मूल्यमापन हम जो भी तुम्हारे रिस्पॉन्सेज आएंगे इसके ऊपर हम करेंगे. सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे? यू लर्न दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेक्स्ट. जो भी आपको दिया है टेक्स्ट में वह जानकारी आप को समझ में आती है. यू कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नोटिस बोर्ड, चार्ट्स एंड अदर पिक्चर्स. सो ये आपने पढ़ा है. तो तुम्हें अच्छी लगी ना वाइल्ड बोर की कहानी? So this was the end of our activity. So please refer 1.3 of your textbook and read the story The Wild Boar and the Fox, and also watch my video. Thank you.